कल कहाँ तक कर रहे थे बेटा प्रॉब्लम्स, कहाँ तक हम लोग? सॉरी, चलो अच्छा 8 से करना है ना, चलो 8 करे बेटा कोई। The distance between two particles moving towards each other is decreasing at the rate of 6 meters per second. If these particles travel with the same speed and in the same direction, then the separation increases at the rate of your 4 meters per second. Okay. The particles have the speeds as dash. आया किसी को? The distance between two particles moving towards each other is decreasing at the rate of, when two particles are moving towards each other, मतलब ऐसा, एक particle is moving in this direction with a velocity v1 and another particle is moving towards this one. तो दोनों के बीच में relative velocity कितनी होती है बेटा, कोई बता सकता है? What will be the relative velocity between these two? v1 plus v2 will be equal to 6. This is my equation number 1. उसके बाद उसने क्या बोला? If these two particles travel with the same speed and in the same direction, अब दोनों same direction में जा रहे हैं second case में. This is moving with velocity v1 and this one is moving with a velocity v2. ठीक है ना? So and the same direction, then the separation increases at the rate of 4 meters per second. And इन दोनों के बीच में की separation is been increasing. When two particles are moving in the same direction, तो दोनों की relative velocity कितनी हो जाएगी बेटा? v1 minus v2. That is equals to 4. This is your equation number 2. Okay. Now can you solve the equation 1 and 2 बेटा? कैसे solve करोगे, कोई बता सकता है? Can anyone solve this one? v1 is equals to 4 plus v2 and that substitute in equation 1. v1 plus v2 is equals to 6. ठीक है ना? Yes. तो इसमें से मैं v2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ. v2 Yes. कितनी होगा? v2 कितना होगा? Minus v1. कितना? v2 is equal to कितना? 6 minus v1. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. So substitute 3 in your 1. Substitute 3 in your 1. v1 plus v2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 6 minus of your v1 is equals to 4. Isn't it? v1 ये 6 कर लो पूरा v1 टर्म सही जगह ले लो तो माइनस रह जाएगा. कितना हो रहा है? ये 6 इधर चले जाएगा तो कितना होगा बेटा? v1 minus 2 sir. कितना हो रहा? Sir, हाँ बेटा. v1 plus 6 minus v1 is equals to 6, sir. First equation. v1 plus v2 is equals to 6. That is the first equation. हाँ v1 plus v2 is equals to 6. तो अब ये v1 अच्छा 6 है क्या ये? सॉरी. हाँ. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 6. पता है ना? Yes, sir. सॉरी. तो v1 कितना होगा बेटा? v1 कितना होगा? ये इसको ऐसे भी कर लो ना, नहीं तो डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर लो ना, दैट इज मोर बेटर. ये देखो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 6 है. ये v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है. तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. होगा? Yes sir. ये वाला चला गया. v1 प्लस v1 दैट विल बिकम फॉर मी 2v1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4. ये कितना हो जाएगा? 10. तो v1 कितना बन गया? 10 by 2. तो दैट विल बी हाउ मच फॉर मी? 5 मीटर पर सेकंड. तो v1 लेके जाके सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में डाल लो. सो आई विल टेक दिस वन एज अ फिर इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ व्हाट विल डू इज सब्स्टिट्यूट 3 in your 1. So it is v1 plus of your v2 is equals to 6. तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5. So it is 5 plus v2 is equals to 6. तो v2 कितना आ जाएगा? 1 meter per second. 1. So v2 is equals to 1 meter per second. आया सभी को? Yes sir. ओके चलो
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा 9 क्या है? Yeah. Two trains are moving with equal speed in opposite direction and along two parallel railway tracks. If the wind is blowing with a speed u along the track so that the relative velocity of the train with respect to the wind are in the ratio 1:2, then the speed of each train must be equal to your how much? So let the speed of the train हम लोग को नहीं दिया बेटा x है, तो कंडीशन क्या दे रखा है देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो. Two trains are being moving with a equal speeds and in equal speed in opposite directions along two parallel tracks. If the wind is blowing in the same direction is with the speed u along the track so that the relative velocity of the trains with respect to the wind are in the ratio of 1:2. यानी अगर ये ट्रैक है और ये ट्रैक में टू ट्रेन्स मूव कर रहे हैं like this. This is one train and this is your another train. ठीक है ना? Wind is moving along the train. This is your wind. Wind is moving along the train. तो एक के लिए प्लस होगा, एक के लिए माइनस होगा बेटा. मान के चलो both of them are moving at the same speed. तो इसकी स्पीड मान के चलो मैं मान रहा हूँ x और इसकी भी स्पीड मान के चलो x. तो ये x और ये विंड की वेलोसिटी दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है? Isn't it? Yes, sir. अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? x माइनस u हो जाएगा. Yes. इसके लिए कितना हो जाएगा? x प्लस u होगा. Yes. तो दोनों का रेशियो कितना ले सकता हूं मैं यहाँ पर? अभी देखो x माइनस u डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ योर u इज गिवन इन द रेशियो ऑफ 1:2. ओके ना? Yes. तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ योर x माइनस u इज इक्वल्स टू x प्लस u. ये हो गया 2x माइनस 2u is x equals of to u. plus u. तो ठीक है ना? 3u. तो कितना आ रहा? ये माइनस u इधर चले जाएगा, 3u. माइनस u इधर चले 3u, जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u. 3u. x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? X. माइनस, यानी 2x माइनस x हो गया x. x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ X योर is equals to 3u. 3u. यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल समझ बेटा 3u. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 3u. सो 3u मस्ट बी द आंसर. ये ठीक है. Instruction. चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा. Yes, sir. A conveyor belt is moving horizontally at a speed of 4 meters per second. A box of mass 20 kg is gently laid on it. It takes 0.1 second for the box to come to the rest. If the belt continues to move uniformly, then the distance moved by the box on the conveyor belt is how much? A conveyor, what do you mean by conveyor belt बेटा? आटे की गिरनी आपने देखा है कभी? पुराने जमाने की, पक्का हैदराबादी लोगों को शायद नहीं मालूम हो. एक ऐसा एक व्हील होता है, यहाँ पर एक ऐसा व्हील होता है, इसके ऊपर ऐसा एक पट्टा होता है और ये पट्टा इस तरह से मूव करता है. जैसे मान के चलो चेन ऑफ योर कार और चेन ऑफ योर ट्रेन ये मूव कर रहा है. तो ये कन्वेयर बेल्ट अगर इस पे कोई भी चीज रखी है, एयरपोर्ट में आपने देखा होगा, isn't it? एयरपोर्ट में जब बैग्स लेने जाते हैं लोग क्या होता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर जब बैग रखा जाता है, they will be traveling from one point to another point, they will be moving on a belt और कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहता है. उसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं. ठीक है. सो कन्वेयर बेल्ट क्या है? कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. तो ये कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है विथ योर 4 मीटर पर सेकंड. जैसे एस्केलेटर आपने मेट्रो में भी चढ़ा होगा, एस्केलेटर अगर आपके पाँव रख दो तो सीधा आपको लेके चले जाती. दैट इज आल्सो लाइक ए कन्वेयर बेल्ट बेसिकली. ठीक है. तो उसके बाद क्या हो गया? A conveyor belt is moving horizontally at a speed of 4 meters per second. A box of mass 20 kg is gently laid on it and it takes 0.1 second for the box to come to the rest part of a relation. तो मास कितना है यहाँ पर? मास ऑफ द बॉक्स कितना है? 20 kg. मास क्या, इसका मास कितना दे रखा है? 20 kg. और कितने टाइम में रेस्ट पे आ रहा है? टाइम इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड में ये रेस्ट पे आ रहा है बेसिकली. उसके बाद उसने क्या बोला? It takes 0.1 second for the box to come to the rest. If the belt continues to move uniformly, then the distance moved by the box on the conveyor belt will be equal to how much? यानी ये कितना डिस्टेंस इस पे मूव करा हो. Okay, और ये मूव कर रहा है with constant acceleration. Acceleration is equals to constant. That means I can use the kinematic equations. What equation I can use बेटा?
टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ v 80। plus 80 काइनेमेटिक्स में मास का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, अगर अपने को फोर्स निकालना है तो ही हम लोग यूज करेंगे मास का कंडीशन। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, बॉडी फाइनल पे रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट जितना होगा, ये बॉक्स का भी उतना ही वेलोसिटी होगा ना बेटा, है कि नहीं? अगर आप बस में जा रहे हो, बस अगर 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही है तो आपकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पे रहेगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, सो दिस विल बी इक्वल टू योर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यों माइनस है बता, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम पार्ट डिफलेशन प्लस एक्सेलरेशन, ये इनटू टाइम कितना है 0.1 सेकंड। तो इसमें से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं बेसिकली, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, -4 इज इक्वल्स टू योर ये बाय योर 10, तो एक्सेलरेशन कितना बना 40 मीटर पर सेकंड। आ गया, माइनस इधर आ गया तो प्लस आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 40 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला s is equals to v Equals to square by u. 2a, Okay. from which relation I got v square minus u square is equals to Is 2a equals to into s. 2s. Final velocity is 0, this one is of your minus of your u square, that is equals to 2. Acceleration will be equal to your constant right now, that will be decreasing with respect to time, so it will be equal to minus a into your s, a minus cut जाएगा, so s is equals to v square by u or u square by 2 into your a. इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा मेरे पास 4, सो इट इज योर 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 40, तो ये कितना है बेटा 4 4 is 16, so this is 16 divided by 2 into your 40, so ये कितना आ गया 16 divided by your 80, 0.02. 16 divided by your 80 मतलब कितना आ रहा है बेटा 0.2 0.2. meters आ गया, 0.2 meters। ठीक है, next one देखो 11th one, two cars A and B are moving with the same speed of 45 km/h along the same direction. If a third car C coming from the opposite direction with a speed of 36 km/h per hour meets the two cars in an interval of 5 minutes, the distance of the separation of the two cars A and B should be how much? Answer is to be taken in terms of kilometers only bit. Two cars A and B are moving with the same speed of 45 km/h, 45 km/h along the same direction. So the two cars are moving in the same direction. If a third car C coming from the opposite direction with a speed of 36 km/h meets the two car in an interval of 5 minutes. So the distance of separation of the two cars A and B should be equal to your how much? आया किसी को? फर्स्ट में क्या बोल रहा है देखो, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों की स्पीड जब सेम है मतलब दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी सेम रहेगा कभी भी, है कि नहीं बेटा, दोनों की स्पीड सेम है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो मान के चलो ये कार है, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है द सेम स्ट्रेट रोड, और ये कार है इसकी भी सेम स्पीड है, तो दोनों की सेम स्पीड है मतलब डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन फॉर मी द सेम, isn't it? So distance between the car A and car B will always remain for me your same part of relation, ठीक है ना। so this is मान के चलो कार A है और ये मान के चलो कार B है, okay, now the distance between them always remains for me the same। अब उसके बाद उसने क्या बोला, so two cars are moving with the same speed of 45 km/h along the same direction, the third car C from the opposite direction with the speed of 36 km/h, यानी एक थर्ड कार है यहाँ पर, दिस इज योर थर्ड कार विच इज कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो गई कार सी, इट इज कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 36 km/h एंड दिस इज मूविंग विथ योर 40 कितना है 45 km/h, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू योर ये, विद रेस्पेक्ट टू योर ये एंड B and velocity of car with respect to B, क्या दोनों के लिए opposite direction में ही है? Yes, sir. तो दोनों के लिए opposite direction में होगा तो क्या हो जाएगा 45 plus 36 होगा, so that will be equal to your 81 km/h, 81 km/h, ठीक है ना। so distance कितना होगा
So distance is equals to velocity into time. Velocity कितनी है? 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर into time. टाइम भी किसमें लिखना है मुझे? Hours में. आवर्स में. कितना टाइम दे रखा है? टाइम दे रखा है कुछ? 5 minutes. 5 मिनट्स. 5 मिनट्स मतलब 5 minutes. 5 मिनट्स मतलब कितने आवर्स? कितने आवर्स में आ जाएगा? 5 into 60. आवर में आना ना बेटा. 5/16. हाँ 5/60. 5/60. क्लियर है? Yes, sir. 5 मिनट मतलब कितना बेटा? आवर्स में लिखना है तो कितना करोगे? डिवाइड बाय 60 करोगे ना. Yes. 5/60. So it is 81 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/60 आवर्स में आ जाएगा. तो ये आवर है, ये आवर है, कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज 81 इंटू 5/60 किलोमीटर्स. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो. कितना आ रहा है देखो रफली. रफली करके चलो. इसको 81 को 80 मान के चलो तो आपका कैलकुलेशन बहुत नजदीक पे आ जाएगा. तो अजम्पशन लगा सकते हो. सो इट इज नथिंग बट फिर 80 मतलब 0 चले जाएगा. 8/6. 8/6 मतलब 4/3. 4/3 इंटू 5 कितना आ रहा? 6.7 sir. 6.77 समथिंग किलोमीटर. आया सभी को? आया सभी को? Yes, sir. कितना आया? 6.77. मतलब आई कैन कीप द फर्स्ट ऑप्शन एज द आंसर फॉर दिस. First option. ओके. नेक्स्ट वन बेटा 12th वन देखो जल्दी से. Two cars A and B are traveling in the same direction with velocity v1 and v2. v1 is greater than v2. When the car A is at a distance d ahead of the car B, the driver of the car A is applying the brakes, producing a uniform retardation A. There will be no collision if the distance between them is equal to how much? तो पहले इन दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे थे बेटा? सेम डायरेक्शन में जा रहे थे. तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेसिकली तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. सो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? Initially both of them are moving in the same direction. So relative velocity कितना हो जाएगा? V relative will be equal to v1 minus of your v2. और final relative velocity कितना हो जाएगा बेटा? 0 because it is going to apply the brakes. So when they are applying the brakes, दोनों के बीच में relative velocity 0 हो जाएगी. So I can use the kinematic equation v square minus u square is equals to 2a into your s. Initial relative velocity is v1 minus of v2 whole square minus of this will be equal to how much for me beta? Initial velocity will be equal to your minus. तो ये कितना हो जाएगा? v square minus of your u square. कहाँ गया? फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? 0. v फाइनल है, ये u इनिशियल है. तो ये हो गया 0 स्क्वायर. दिस इज माइनस. दिस इज v1 माइनस ऑफ योर v2. ये हो गया होल स्क्वायर 2 इंटू ये एक्सेलरेशन रिटार्ड हो रहा है तो माइनस s इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट d. तो ये माइनस टर्म विल गेट कैंसल. सो v1 माइनस v2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू योर d. तो दोनों के बीच में की डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस d थी. इट विल ट्रैवल सम डिस्टेंस सो इट विल बी इक्वल टू 2a into your s into v1 minus of your v2 into your whole square. So s will be equal to your how much? So s will be equal to v1 minus of your v2 whole square divided by 2 into a part of relation. So the distance between the two cars is of your s and the collision will take place. And to avoid the collision, आपका distance जो है ना, it should be greater than of your s. Then only there will be no collision. यानी your distance d must be greater than of your v1 minus of your v2 whole square divided by 2 into your a. ये इतना डिस्टेंस है ना बेटा. अगर d is equal to s भी है तो collision होगा. अगर collision नहीं होना मतलब आपका जो distance between the two cars है that should be greater than of your distance yes. Then only there will be no collision. So to avoid collision, I can write here to avoid collision. To avoid collision, the distance between the two cars must be greater than of your s. s की वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लो. This will be the answer. आया सभी को? Yes, sir. D is Yes, your actual sir. distance. D is your actual distance. D is your actual distance. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है. Yes, sir. तो ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन.
तो इसको आप लोग आज खत्म कर लो। आज इस पे एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, उसको आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका असाइनमेंट का वर्किंग। चलो वेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं बेटा जल्दी से एक बार। और असाइनमेंट्स बाकी है जितने भी थे वो देख लो, अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द क्लास, विल ट्राई टू गिव वन डाउट्स क्लैरिफिकेशन, या बाकी के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए क्लास रख लेते हैं बेसिकली। चलो वेक्टर्स चलते हैं बेटा जल्दी से। सो जल्दी जल्दी देख लो, वेक्टर्स को ज्यादा टाइम मत लगाओ। सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, वेक्टर्स। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू, डायरेक्शन उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। मान के चलो मैं अपने घर से मैं अपने आंट के घर को जा रहा हूँ, तो अगर मैं अपने कार में जा रहा हूँ, अगर मैं घर बोल के जा रहा हूँ कि आई विल गो विद स्पीड ऑफ योर 10 किलोमीटर पर आवर एंड सो रास्ते से जाऊंगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर। सो एनी बॉडी व्हिच इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज योर वेक्टर। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, स्टिल दे आर नॉट कॉल्ड एज अ वेक्टर बिकॉज इट शुड ओबे द वेक्टर लॉस ऑफ योर एडिशन, यानी पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगोनल लॉ, जो लॉस है ना उसको ओबे करना पड़ेगा। लाइक इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के पास बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है बिकॉज इट इज नॉट ओबेइंग द वेक्टर लॉस ऑफ योर एडिशन। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। A physical quantity which has both magnitude and direction are called as the vectors. Examples are force, torque, velocity, accelerations, blah blah. उसके बाद physical quantities which have only magnitude and no specified direction, only magnitude and no specified direction, no specified direction is called as of your what beta, scalar quantities like length, time, volume, density, temperature, mass, work, energy, electric charge or current, potential, resistance, capacity, blah blah. These are all of them are called as of what for me as scalar quantities. I hope you got a clarity between vector and scalar. Vector are the physical quantities which has both magnitude and direction, and physical quantities which has only magnitude, physical quantity which has only magnitude part of relation are called as of your scalars. The which have both magnitude and as well as of your direction are called as of what, vectors part of relation. Clear for everyone? ठीक है। Yes, sir. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो बेटा, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेक्टर को एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेल और इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये जो एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो जो दिख रहा है ना उसको हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला पॉइंट है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। ये जो पॉइंट टेल से लेके हेड तक की जो डिस्टेंस की लाइन मारी गई है ना उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये हेड जो है ना ये डायरेक्शन देगा, ये जो वैल्यू है ना ये मैग्नीट्यूड देगा, यानी नंबर। क्लियर है? Is it clear? Representation of a vector. Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से, ओके फाइन। अब देखो एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा। एंगल कभी भी टेल और टेल दो मिल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में की जो छोटी एंगल होती है वो उसकी एंगल बनेगी। देखो टेल एंड टेल के बीच के अंदर ये एंगल है, ये भी एंगल हो सकती है, ये भी एंगल हो सकती है बेसिकली टीटा, लेकिन ये टीटा और ये टीटा में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? अंदर वाला छोटा है, तो छोटे वाले को कंसीडर करेंगे हम कभी भी। तो टेल एंड टेल मेथड में वी कंसीडर ऑलवेज द एंगल व्हिच इज बीन एनक्लोज्ड और व्हिच एवर द एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर दो एंगल्स है मेरे पास तो दो एंगल्स में से जो बड़ा होगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी हम लोग उसको लेंगे। अगर टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज बीन कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, सो देखो दोनों के टेल्स जो है ना कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर दोनों के टेल्स कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों के बीच में जो एंगल एनक्लोज होगी वो हम लोग को थीटा देगी। क्लियर है? This method is called as tail to tail method. Yes, this sir. Method is called your tail to tail method. ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर देखो head of the first vector is coinciding with the tail of the second vector. जब भी head और tail मिल रहे हैं बेटा तो आप क्या करोगे, पहले वाले head को extend करोगे और उससे एंगल बनाओगे tail of the second vector से, तो वो अपने को थीटा देगा। क्लियर है? हेड और टेल जब मिल रहे हैं बेटा, अगर हेड और टेल मिल रहा है और उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट इज एन एंगल बिटवीन देम, सो डोंट टेक द एंगल एनक्लोज्ड इन बिटवीन देम। तो हेड ऑफ द वेक्टर को पहले आप सामने खींचो, हेड ऑफ द वेक्टर को आप पहले सामने खींचो, द एक्सटेंडेड वेक्टर जो भी एक्सटेंड हो रहा है उससे आप लोग जो एंगल बनाओगे सेकंड वेक्टर से, दैट विल बी योर थीटा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, समझ sir. में आया?
समझ में आया सभी को? So though there are two methods to calculate the angle. One is by tail to tail method. This is your head to tail method. This one is head to tail method. This one is head to tail method. ठीक है? एंगल कैसे लोगे? हेड और टेल के मेथड में हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को एक्सटेंड करोगे, दिस विल बी द थीटा। ठीक है, एग्जांपल देखो, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, this is the equilateral triangle, arrow, this is one another one and this one is another one. This is vector a bar, this is vector b bar, this is vector c bar, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी? 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर के एंगल्स कितने होंगे? 60। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी बेटा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो क्या करेंगे, हेड और टेल मिल रहे हैं, तो हेड को पहले एक्सटेंड करूंगा, ऐसा हेड को ऐसा एक्सटेंड करूंगा एंड आई एम मेकिंग द एंगल विद द टेल ऑफ दिस वन, तो ये हो गई थीटा। तो पूरा टोटल एंगल कितनी होती है बेटा? 180 डिग्रीज होती है। 180 में से 60 को घटा दो, दैट विल बी इक्वल टू 120। आया सभी को? यस सर। ये क्या क्या मिल रहे हैं? देखो, हेड और टेल मेथड मिल रहे हैं। हेड और टेल मेथड में आप लोग को हेड को फर्स्ट पहले सामने खींचना है, वो बेसिक प्रोसेस है। तो इसको सामने खींचो और जो खींची हुई लाइन से आप एंगल बनाओ टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर से, दैट विल बी द एंगल बिटवीन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बी एंड सी के भी देखो, बी एंड सी में हेड एंड टेल मेथड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 60 मत बोलो आंसर। तो क्या करोगे आप? हेड को एक्सटेंड करोगे एंड यू इसका एंगल बनाओगे, तो यहाँ पर भी 180 माइनस 60, तो ये भी हो गया 120। तो यहाँ पर भी हेड और टेल मेथड है, तो फिर हेड को सामने खींचो, तो एंगल बाय द हेड विद रिस्पेक्ट टू द टेल, सो दिस विल बी 180 माइनस 60, दैट विल बी इक्वल टू 120। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आया सभी को एंगल लेने का मेथड? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्टली आई कैन ऐड, जैसा वेक्टर्स में ऐड करते हैं ना, तो दोनों को ऐड करो तो ऐसा आ गया मैग्नीट्यूड। इन दोनों की जो भी डायरेक्शन रहेगी, जो बड़ा वाला डायरेक्शन रहेगा ना, जो बड़ा वाला वेक्टर होगा ना, उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इन दोनों को मैं जब ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली ये बन गया वेक्टर दिस वन, सो आर बार विल बी इक्वल टू a प्लस b, ऐसा ऐड कर सकते हो। अगर टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ये तो सीधा सीधा थे सेम स्ट्रेट लाइन में, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया। अगर दोनों एंगल बना रहे हैं, देखो मान के चलो ये एक एंगल ए बार है, एक एंगल बी बार है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो पहले इन दोनों का टेल टू टेल मिलाओ या टेल टू हेड मिलाओ, कोई भी मेथड कर सकते हो बेसिकली। तो मैंने क्या किया, और एक बात देखो, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो बेटा। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो मतलब क्या? देखो बेसिकली आई कैन टेक दिस वेक्टर, तो यहाँ पर लगा सकता हूँ ऐसा, यहाँ पर लेके यहाँ पर लगा सकता हूँ ऐसा, या इसको ऐसा खींच सकता हूँ, ऐसा ऊपर लेके जा सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे नीचे लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसको टर्न नहीं कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? Yes, sir. I can shift the vector parallelly. I can shift the vector parallelly. I can shift the vector. I can shift the vector parallelly. Vector parallelly. मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको धीरे से पकड़ा, लेके आया, लेके आया, लेके आया, लेके हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से मिला दी। तो देखो ये हो गया वेक्टर ए बार, ये हो गया वेक्टर बी बार। अब ये इसको दोनों भी सेम डायरेक्शन में, द थर्ड वेक्टर क्लोजिंग वेक्टर है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, दैट विल गिव मी द रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? ट्रायंगल लॉ। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? ट्रायंगल लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, the closing side of the triangle should always be taken in what order beta? Reverse order. तो ये resultant कितना बनेगा? a plus of your b. So the resultant r bar will be equal to your a plus of your b. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ऐसा करना भी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों के टेल मिला सकते हो। आप इसको थोड़ा सा नीचे सरका दो, तो ये हो गया b बार, तो ये हो गया b बार, ये हो गया a बार। तो टेल एंड टेल मिल रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, will be given by the diagonal like this. So this will be given by the resultant r bar. इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट बना रहा है एंगल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर अल्फा। ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, resolution of a vector, subtraction of a vector. Subtraction of a vector is nothing but addition of negative vector to a positive vector. Addition of your negative vector to your positive vector is called as of a subtraction of vector. Like r bar is equals to a bar minus b bar. A bar minus b bar मतलब क्या? A bar plus minus of b bar. A bar plus of your minus of b bar. So r is equals to how much for me? So I can simply say that subtraction of a vector is nothing but addition of a negative vector to your positive vector. Clear है?
Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कितना टाइम बाकी है? 9 minutes. पक्का? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, रिसोल्यूशन और स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर बेटा। रिसोल्यूशन और स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। स्प्लिटिंग मतलब क्या? डिवाइड करना। दो वेक्टर्स को मैं, एक वेक्टर को जो है ना टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को हम लोग रिसोल्यूशन बोलते हैं। मान के चलो ये वेक्टर ए बार है बेटा, इस वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना है, वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है। ब्लाइंडली रिमेंबर करो, जहां पर थीटा होगा वो cos थीटा बन जाएगा। ए बार है, इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट है एक्स, इसका वाई कंपोनेंट है ए वाई। जहां पर भी थीटा होता है, इसका एक्चुअली प्रूफ भी है, अब इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए कभी भी देखो कहीं पर भी अगर जहां पर थीटा है तो वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा? ए cos थीटा। ऑपोजिट क्या बन जाएगा उसका? ए sin थीटा। तो दिस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स और ए वाई को हम लोग ऐड करेंगे तो वेक्टर ए बार बनेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? ए cos थीटा आई कैप। ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए sin थीटा इंटू जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी इसका नंबर निकालना है तो क्या करोगे? स्क्वायर कर लोगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ योर ए वाई स्क्वायर विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। दिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड। अगर ये थीटा निकालना है तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट ना बेटा, y बाई एक्स यानी ए वाई बाई एक्स। So tan theta is equal to how much for me? A y by your ax. Is that clear for about the resolution of a vector बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से अगर यहाँ पर थीटा आ गया ऊपर, अगर थीटा यहाँ नीचे ना होके अगर ऊपर आता थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? cos थीटा। Cos theta. और नीचे वाला क्या हो जाएगा? sin थीटा। यानी यहाँ पर ए वाई हो गया ए cos थीटा और ए एक्स हो गया ए cos थीटा। तो वेक्टर ए बार जब भी एक्स एंड वाई में है तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ए एक्स आई कैप और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई जे कैप। आई कैप जे कैप और कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स बेटा। एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आई कैप, वाई एक्सिस में जा रहा है तो जे कैप, जेड एक्सिस में जा रहा है तो के कैप। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए इंटू साइन थीटा आई कैप। ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए इंटू कॉस थीटा जे कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए बार। इज द रिजोल्यूशन क्लियर? किसी को कुछ डाउट है क्या? देख लो इसके अंदर, जहां पर थीटा वहां पर cos थीटा बेटा, ब्लाइंडली याद रख लो। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी याद रखने के लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में कहीं पर भी, क्योंकि अब आधे से टाइम पे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशंस वगैरह में आपको रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा आता है। तो जहां पर थीटा है वो क्या हो जाएगा? cos थीटा। जहां पर थीटा है वो cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा है तो ये cos थीटा बन गया, और यहाँ पर अगर वर्टिकल से थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, Yes, sir. very very important beta. If a vector is rotated by 360 degrees or 2 pi radians, then it will not change. If a vector is rotated by 360 degrees or 2 pi radians, it will not change. मतलब क्या? मतलब क्या? अब देखो एक वेक्टर ऐसा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो It is एक reaching वेक्टर to the ऐसा है, same position. हाँ ये वेक्टर ऐसा है, इसको 360 डिग्रीज में घुमाओ। तो मैंने इसको ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, फिर वापस वहीं पर आया, तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? क्या वेक्टर नहीं हुआ चेंज हुआ? सर। No, sir. So if a vector is rotated by कितना 360 डिग्रीज और 2 pi radians, अगर वेक्टर को घुमा रहे हो तो उसमें कोई भी क्या बोलते चेंज नहीं आएगी। There will be no change in that one. Is it clear? Yes, sir. Is that first point clear? If a vector is rotated by an angle of 360 degrees or 2 pi radians, it will not change. And we can shift the vector parallelly. एक वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, सो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, फिर इसको सामने लेके जा सकते हैं, इसको नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके एंगल हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो नेक्स्ट वन, if a vector is rotated in angle 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees or 180 degrees or 120 degrees or 270 degrees, any other angle other than 2 pi radians or 360 degrees, it will change. अब मान के चलो आपने वेक्टर यहाँ था तो आपने बोला कि मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गई ना इसकी। तो आपने रोटेट किया Yes, बाय sir. एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेक्टर भी चेंज हो गया, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? अगर इसको मैं 180 डिग्री से घुमाऊं तो इस वेक्टर को मान के चलो यहाँ पर लेके जाऊं, तो ये भी वैसे ही कर रहा है। तो पहले तो ये डायरेक्शन बता रहा था, अभी तो उसका उल्टा डायरेक्शन बता रहा है। अगर 180 डिग्री में भी लेके जाओ तो वेक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर है? इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes. So if the vector is rotated at an angle other than 2 pi radians or 360 degrees, it will change.
180 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस की छोड़ के कोई भी एंगल को अगर एक वेक्टर को आप घुमा रहे हो तो दैट विल बी चेंजिंग। वो कितना चेंज होता है वो हम लोग को प्रॉब्लम में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? Yes, Is it sir. clear? So if a vector is rotated by 360 degrees or 2 pi radians, it will not change. If a vector is rotated by an angle of 30 degrees, 60, 90, any other angle other than the 2 pi radians or 360 degrees, it will change. ठीक है ना? नेक्स्ट वन, अभी रेसोल्यूशन बताओ जल्दी से। मान के चलो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया F, दिस इज ए थीटा। तो रेसोल्यूशन करो क्या बताओ इसको। इसका हॉरिजॉन्टल कितना बन जाएगा बेटा? F cos थीटा, जहां पर थीटा वहां पर cos, ये होगा F cos थीटा, वर्टिकल बन गया F sin थीटा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब ये देखो, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, इसके ऊपर एक वेट रखा गया हुआ है। वेट इज द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका वेट ऑफ द बॉडी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। ये थीटा है बेटा। तो यहाँ पर देखो एंगल बहुत ध्यान से देखो, ये भी छोटा सा ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल। तो ये कितना बना बेटा? 90। तो ये कितना बना? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बना? Theta. थीटा। क्यों? ये टोटल एंगल कितनी होनी चाहिए थी? 90 होनी चाहिए थी, isn't it? तो ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना बन जाएगा? पूरा 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. क्योंकि ये एंगल 90 होना चाहिए ना बेटा, ये एंगल 90 होना चाहिए। Yes. तो ये एंगल भी अपने को 90 होना चाहिए। सो दिस एंगल विल बी थीटा। सो जहां पर थीटा वहां पर कितना बन जाएगा? cos। तो mg को रिजॉल्व करो अभी राइट नाउ। सो इफ आई एम रिजॉल्विंग द mg पार्ट ऑफ रिलेशन, तो mg को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं तो देखो ये पे थीटा है, तो ये बन गया मेरे पास mg cos थीटा और ये बन गया mg sin थीटा। न्यूटन्स लॉस में ऐसे एंगल्स आते हैं तो याद रख लो, फिर जब पूछना नहीं सर यहाँ पर आपने थीटा क्यों लिया, ये थीटा क्यों लिया, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो ये भी अपने को 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा पार्ट। क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. जहां पर थीटा वहां पर cos, जहां पर थीटा वहां पर cos। उसके बाद ये देखो एक पेंडुलम है बेटा, ये पेंडुलम मैंने यहां से यहां तक ले लिया बाय अप्लाइंग ए फोर्स। मैं एक फोर्स अप्लाई करते हुए धीरे से उसको ऊपर उठा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा, दैट इज नथिंग बट x। तो ये जो पेंडुलम है यहाँ से यहाँ तक गया इस तरह से आर्क बनाते हुए, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x। ओके, और ये हो गया l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप होती है, दैट इज नोन एज फियर t। ये हो गया यहाँ पर टेंशन t। दिस t, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा बेटा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। जहां पर थीटा वहां पर cos। तो अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज t, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया t sin थीटा। तो t sin थीटा बैलेंस कर रहा है फोर्स को और t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, यानी F will be equal to t sin theta और this mg will be equal to t cos theta। इन दोनों को डिवाइड करो, t and t will get cancelled, sin theta by cos theta is nothing but tan theta, F by mg। यानी फोर्स कितना बना? F is equal to mg into tan theta, so that is the force। क्लियर है? रिजॉल्विंग आया सभी को? Yes, sir. इसमें कुछ डाउट है क्या? देख लो जल्दी से। सर ये फिर से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने बॉब ले लिया बेटा, आई एम अप्लाइंग द फोर्स और धीरे से इसको खींचते हुए ऊपर गया। तो अब यहाँ पर आके मैंने रोक दिया, तो ये हो गया लेंथ बेटा यहाँ भी, ठीक है ना? ये हो गया लेंथ। Yes. और यहाँ से कितना डिस्टेंस गया हॉरिजॉन्टल?